and good morning, and I welcome you students. The important, very important topic of position of elements in the modern periodic table. देखो, in the last video I have uploaded, I have told you that modern periodic table is based on atomic number. Periodic properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. What is the basis of modern periodic table? Basis of modern periodic table I told you is atomic number. So modern periodic table is based on atomic number. The elements are arranged according to increasing atomic number. So this is very important because it removed the problems which we were facing with the Mendeleev periodic table. One of the main problem with Mendeleev was the isotopes, because isotopes position, where to put isotopes, because isotopes have the same atomic number. Isotopes have same atomic number but different mass number. So when modern periodic table was given on the basis of atomic number, we arrange elements with increasing atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then elements which have the same atomic number, they are just one element only, but isotopes are those elements, they have the same atomic number but different mass number. So the isotopes will be in the same group, will be put in the same position in the modern periodic table. There's no problem. If I say hydrogen has got 3 isotopes, what are the 3 isotopes of hydrogen? You write it like this. Mass number 1, 2, 3. Atomic mass is different, atomic number same. So the 3 isotopes belong to the same group. So that problem is solved by the modern periodic table. And further, the problems which were there in the Mendeleev classification, that certain elements with higher atomic mass were coming before with lower atomic mass, that problem was also solved because the elements are now arranged according to increasing atomic number. So there is no problem that the higher atomic weight will come first and then the lower atomic weight. Because of this was considered very important. And as I said, again, I am just repeating and recapping few things. There are 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods in the modern periodic table. You have an NCERT book, students, and you can look up the page number 87 where a table has been provided. Page 87 or 86, they have given the complete modern periodic table and try to see how many groups are there and how many periods are there. So elements present in one group, what is the important thing about the group? ये question will be there in the paper. ये दिया है उसने sample paper में, मैंने solve किया. तो ये आने वाला है कि element in the same group have the same number of valence electrons. Most important point. Important. This point is very important, student. कि when elements are in the same group, elements which belong to the same group, they will have the same number of valence electrons. Important point, student. Note it down. What are valence electrons? Electrons present in the outermost shell. If the number of valence electron is same, then what happens? Their valency is same. A question was put up in the sample paper given by the CBSE. Valency will be same. So they have the same similarity in chemical properties. Valency is same means they will have same combining capacity, similar properties. For example, if I take a second group element, let me say second group element, students. Now focus your attention on group 2 of the modern periodic table. Page number you can check is 86. Which are the elements of group 2? Can you tell me the name of few elements of group 2? Such question will be there in the paper. You start with beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. These are the elements of group 2. Tell me yes or no. Have I written the correct elements? If any mistake is there or correct. Now the element atomic number is 2. 2 plus 8, how much? 2 plus 8 will be how much, student? The beryllium, hydrogen, helium, lithium, hydrogen, helium, lithium is 4. This atomic number is 4, student.
Add 8, you will get 12. Add 8, you will get 20. Then you will add 18, 38. Like this, these are the atomic numbers. Elements are arranged according to increasing atomic number in the modern periodic table. ठीक है? Increasing atomic number. All this is known to you, student. Now, if I have to write their electron configuration, it was suggested in the NCERT that first 20 elements, you will know the atomic number and the electronic configuration. First 20, I am saying 1 to 20. So beryllium, how will you write? You write 2 and 2. This is the first shell, which is called K shell. This is the L shell. So there are 2 shells. How many shells? 2 shells. And when I come to magnesium, how do you write 2, 8, 2? So now there are KLM and third shell M. So there are 3 shells. How many shells are there? 3 shells. Can you see? 1, 2 shell, 1, 2, 3 shell. And if I write calcium, how you write 2, 8, 8, 2? So one important point to note is what? What do you note here? Valence electron 2, valence electron 2, valence electron 2. The group 2 elements have got 2 valence electrons. Am I right or not? Tell me yes or no. All the elements of group 2 have got how many valence electrons? 2 valence electrons. How many electrons in the outermost shell? Can you see? 2, 2, 2. And all elements. That means their valency is 2, student. In the group, valency is 2. And therefore, as we have shown here, you can see this point, 2, 2, 2. So these elements have 2 electrons in the outermost shell. But what is happening as I go down the group? As I go down the group, student, the number of shell is increasing. Note down, number of shell increases. Very important point. Number of shell increases, students, as we go down the group. It has only 1 and 2 shells, 3 cells. As the atomic number increases, number of shell increases. The number of shell is equal to the period number. Fourth period means there will be 4 shells. Third period means the elements will have 3 shells. So this is one important property which I have shown. Further, let us see what happens when we move across the period, student. When I say there are, how many periods we have said? There are 7 periods. There are 7 periods, student. There are 7 horizontal rows. They are called horizontal rows, student. And as you move from left to right, if I move from left to right, student, what happens? Left to right. Let me take the example, student. Here I am taking the third period. Okay? Third period elements. You can, student, open page 86 NCERT. See the third period elements. Which are the elements of the third period? Third period element. They start with, you will start with sodium. After sodium, which element is coming, student? This is group 1. And in the group 2, what you have? So after sodium, you have magnesium. After that, you come to group 13. What they say? Group 13. In the group 13, which element is there in the third period? This is my third period. Please pay attention, student. I will be solving all these questions. So this is coming aluminium. Then you have group 14, student. Group 14 will be silicon. Then group 15 will be phosphorus, student. And these are all belonging to period 3, third period elements. Then after phosphorus is coming, student, group 16, sulfur. Group 17 are halogens, halogen family. That is your chlorine, Cl. And then group 18, you are getting argon. Tell me, am I right? These are the elements of period 3. What is the atomic number of sodium? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. These are the atomic numbers. Atomic number increases, students.
In the modern periodic table, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Atomic number increasing. So that is the basis of the modern periodic table. So if I write the electronic configuration, what will be the electronic configuration? Let us see, student. Very important questions will be there in the paper. Pay attention. Be with me. This is a live interaction class webinar. You can ask questions anytime you feel like. How do you write the electronic configuration? You have learned it. 11 means 281, student. This is 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. Right? What are these? How many shells are there? In all the three, there are only 3 shells. How many shells in period 3? Third period, there are only 3 shells. All elements of third period, all elements of student period 3 have got 3 shells. Number 1 shell, number 2, number 3. This shell you already know. This is called K shell LM. Or in terms of the quantum number value, principal N1, N2, and N3. All have 3 shells, K, L, M. This also have 3 shells. In the K, L, M, in the NCERT book, they have shown you the electronic configuration of first 20 elements. In 9th class, they showed it. If you don't have, you can just watch my YouTube video for 9th class atoms and molecules and see how to write the electronic configuration. 3 shells. And now what is happening to the valence electrons? You can see the number of valence electron is increasing. Valence electrons, student, what is happening to valence electron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The number of valence electrons is increasing. Can you see that? Tell me. The number of electrons in the outer shell is increasing. Whereas in a group, the number of valence electrons was same. In a period, it is not the same. It is not. But what is same in the period? The number of shells is same. There are 3 shells. Only. Note it down, student, because there will be questions based on this. Very important questions are coming on it. Note down. Recorded videos will be available. If you have any doubt, you can go again. Okay, let us see, student, what we are trying to say. In the NCERT, he talks of activities. A lot of questions are put on the activity, student. It becomes questions in the paper. What he says, if you look at the modern periodic table, you will find that elements lithium, beryllium, boron, carbon are present in the second period. Let us see the second period elements. Second period elements. Which are the second period elements, students? You have a periodic table at page 86 of NCERT. What is that? A second period element, you have lithium, beryllium. Lithium belongs to which group? Group 1, group 2. Then what you have? Lithium, beryllium, boron. Boron is shown in the periodic table in which group, student? 13. 14. What is that? Carbon. Carbon belongs to 14 group. Boron, carbon, nitrogen belongs to which group? Let me put it in a more same way. So student, be with me. Group 15, you have nitrogen. Group 16, you have oxygen. Group 17, you have fluorine. Group 18, you have neon. Okay? These are the group numbers. Second period elements. And this is the group number. What is this? Group number, student, is increasing. Okay? 1, 2, 3, 1, 2, 13, 14, like this. Okay. Write down their electronic configurations. The first question is write down the electronic configuration. If I know the atomic number, student, then I can write the electron. First 20 elements, atomic number should be known to us. What is the atomic number of lithium in the periodic table? Tell me. 3. You have hydrogen, helium, lithium is 3.
4 5 6 7 8 9 10 एटॉमिक नंबर। ठीक है, डिड आई राइट करेक्टली? इफ आई डू समथिंग रॉन्ग टेल मी, बी विद मी। बोलो यहां तक सही है? कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो, कोई डाउट है अभी तक? समझ लो, एक एक पॉइंट को समझ लो, क्वेश्चन बनेगा पेपर में, आएगा इसके ऊपर, समझ लो, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी। तो अब यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट मी सी कि हाउ विल यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Second period means there will be only 2 shells in all the elements. Second period का कितना मतलब है? How many shells will be there? Only 2 shells will be there. कौन से shells होंगे स्टूडेंट? आपको पता है, एक K और दूसरा L, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। तो इसका कैसे लिखते हो? 2 1 2 2, ये कितना हुआ? 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने शेल है? ओनली 2 शेल। पहला शेल कौन सा होता है स्टूडेंट? के शेल, एल शेल, के एल, दिस इज माय के, दिस इज माय एल, के शेल, एल शेल। सिमिलरली सभी में 2 शेल है, ओनली 2 शेल, के एल। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट कंप्लीटली। डू these elements, पहला क्वेश्चन ये आया, write down the electronic configuration we have written, this question answered, number 1. Number 2, do these element contain same number of valence electron? Number 2, अरे number of valence electron is increasing, no, क्या हो रहा है? number of valence electrons increasing, क्या हो रहा है? increasing, कहां से? 1 to 8 इंक्रीजिंग, 1 से शुरू हुए और 8 तक गए। ये 8 दिख रहा है, और ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स? बोलो सेम शेल है? यस, ओनली 2 शेल्स। तो इसका आंसर क्या दिया मैंने? नंबर 3 का यस, दे कंटेन, ऑल कंटेन्स 2 शेल्स। कितने शेल हैं सभी में? 2 शेल। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया सारा। एनी डाउट? बोलो समझ में आया? बी विद मी, समझना है। क्लियर हो गया सारा कुछ स्टूडेंट? कोई डाउट है इसमें? 2 शेल है सभी के पास, के एल। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ये सारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आ सकता है। ध्यान दीजिए, दिमाग लगाना है। अब हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? एक एक लाइन देखो, मेरे साथ रहिए, मैं तुम्हें सारा, आई विल एक्सप्लेन टू यू कंप्लीटली इन फुल डिटेल। कुछ याद नहीं करना, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल हो जाएगा, बुला के तुम्हारे को यहाँ सारे क्वेश्चन करवा दोबारा से, पूरा 2-3 घंटे का पूरा टेस्ट। देखो क्या करना है, मैंने कहा था कि इफ यू आर लिसनिंग टू ए वीडियो और ए लेक्चर, पे अटेंशन, फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, समझिए ईच एंड एवरी वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन अंडरस्टैंड। एक्टिविटीज जो भी दी है सारी करनी है, बिकॉज़ दे विल बिकम क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, तब जाके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं। और 100 मार्क्स लेने मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूं, तुम सबके 100 आ सकते हैं। ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट। अगर 1 महीना तुमने मेहनत कर ली तो तुम्हारा जिंदगी बन जाएगी, 100 में से 100 आ जाएंगे, 100% मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे। और अगर 1 महीना तुमने वेस्ट कर दिया, फिर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। तो ये समझिए कि यू हैव ओनली 1 और 2 मंथ्स मैक्सिमम है तुम्हारे पास, उसको कर लो। सुबह शाम कहीं भी नहीं जा रहे तो घर बैठ के पढ़ लो, और अच्छा है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। पहले क्या, स्टूडेंट जाते हैं स्कूल में, वहां कहते हैं जी टाइम वेस्ट हो। अब क्या है, अब घर में हो तो पढ़ लो, सारा कोर्स रिवाइज कर लो, और जितने चैप्टर आने हैं उनको प्रिपेयर कर लो, सारे क्वेश्चन कर लो। सुनो, जितने भी क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ उनको सॉल्व करके भेज दो व्हाट्सएप। क्या कह रहा है? वी कैन से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। देखो नोट करो, व्हेन एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड, एलिमेंट जो सेम पीरियड में होते हैं स्टूडेंट, they have the same number of, what he is saying, same number of occupied shells, मतलब जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्यूपाइड का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेम होते हैं। अभी हमने सेकंड पीरियड में देखा 2 शेल है, के एंड एल, तो दोनों ऑक्यूपाइड है। किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, लेकिन है दोनों ऑक्यूपाइड।
सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड आर्गन बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ये कह रहा है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं। अभी हमने इसको सॉल्व किया था थर्ड पीरियड वाले का। सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड को। तो इनमें कितने शेल्स होंगे? 3। ठीक है, सभी में 3 शेल हैं। और हमने बताए थे जैसे KLM, जैसे इसका 11 था एटॉमिक नंबर 281, इसका 282। तो 3 शेल है सब में, 283 लाइक दिस। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 284, 285, 286, 287, 288। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। देखिए 1 से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स 3 है सब में। नंबर ऑफ शेल्स 3 है। कौन से? इसने कहा KLM, तो हमने बता दिया ये KLM, KLM 3 शेल सभी में, नो प्रॉब्लम, ओके। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी सेल, कंफर्म द अबव स्टेटमेंट। तो ये आंसर हमने कर दिया, हमने राइट कर दी। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी सबकी। लो 3 शेल है सब में, KLM, KLM। तो कंफर्म कर दिया मैंने, आंसर कंफर्म हो गया। ठीक है, ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फील्ड। तो इस तरह से हर एक नया पीरियड जब स्टार्ट होगा तो इसमें एक शेल और ऐड हो जाएगा। ये थर्ड पीरियड था, अगर फोर्थ पीरियड में जाऊंगा तो 4 शेल्स होंगे। कितने शेल होंगे? 4 शेल होंगे, तो एक शेल ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं फोर्थ शेल में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि एक शेल और ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं फोर्थ पीरियड में जाता हूं तो फोर्थ पीरियड का कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड कौन सा है स्टूडेंट? यहाँ पे पोटेशियम है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो इसका क्या होता है? 2881। ये हो गए। तो अब एक शेल का नंबर बढ़ गया, शेल का नंबर बढ़ गया स्टूडेंट, क्योंकि पीरियड 4 है तो 4 शेल बन जाएंगे। यही वो कह रहा है। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जाने शुरू हो गए, 1 2 3 4 इस तरह से। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कौन सा आता है? कैल्शियम 20 वाला। और अगर आप इसी पीरियड को देखेंगे, आपके पास पेज 86 में तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी एलिमेंट में मिल जाएंगे। उधर था एल्यूमिनियम, बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के बाद वो मिलेगा गैलियम। इस तरह से ये एलिमेंट मिलते जाएंगे, और ये ग्रुप्स आपके पूरा का पूरा टेबल आपको दिया हुआ है। इस तरह से ये फोर्थ पीरियड के अंदर भी हम देख सकते हैं, ये 2882 आ गया, और ये 2883 इस तरह से चलता जाएगा। तो ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। तो जितने भी आएंगे आप लिख सकते हैं। तो आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा। तो 10, 18, तो यहाँ पर 18 आएगा। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 20 कितना हुआ? गैलियम का 31 आया। 18 2 20 28, हाँ 31 है इसका एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम का 13 था, तो यहाँ पर 18 ऐड हुए हैं। इस तरह से हम इनके निकाल सकते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल को फिल कर सकते हैं। यहां भी समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन उसने पूछा था स्टूडेंट से, देयर इज एन एनोमली व्हेन इट कम्स टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन 1, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। और हाइड्रोजन के अंदर आपने क्या किया कि इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 है। अब इसको कहाँ रखा गया है? इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन जो है ना, इट रिजेंबल्स बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। देखो 2 ग्रुप हमने बताए हैं, एक एल्कली मेटल ग्रुप 1 है। एल्कली मेटल कौन सा स्टूडेंट? ग्रुप 1। ये कौन सा ग्रुप है? 1। और हेलोजन्स कौन से ग्रुप में रखे हुए हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? वो है ग्रुप 17। तो हाइड्रोजन शोज रिजेम्बलेंस विद दोस। ये जैसे एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन भी रिजेंबल करता है और ये गेन कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन।
तो हाइड्रोजन भी गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एनॉमलस, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन एनॉमलस है भाई, यहाँ रखें या ग्रुप 17 में रखें। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप 1 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ग्रुप 1 में। तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ज्यादा सिमिलर है, एल्कली मेटल्स इसको ग्रुप 1 दिया गया है, लेकिन ये एनॉमलस पोजीशन है। एनॉमलस का मतलब है कि ये दोनों से रिजेंबल करता है। किससे? ग्रुप 1 से भी और ग्रुप 17 दोनों से रिजेंबल करता है। कौन? हाइड्रोजन। इसीलिए ऐसे कहते हैं एनॉमली, कि ये प्रॉब्लम आ रही है अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन की, क्योंकि ये ग्रुप 1 में भी फिट हो रहा है और ग्रुप 17 में भी इसकी रिजेंबलेंस है प्रॉपर्टीज। ये भी नोट कर लो। अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग थी कि ये कैसे निकालेंगे कि कितने एलिमेंट्स किसी पीरियड में होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो इसके लिए उसने कहा एक फार्मूला बना दिया, वी कैन एक्सप्लेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड बेस्ड ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल्स। तो अगर हमें पता लग जाए कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो उससे हम इनका नंबर निकाल सकते हैं। ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन एक फार्मूला दिया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कमोडेड इन शेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला 2n स्क्वायर। देखो शेल का नंबर क्या है, जैसे फर्स्ट शेल कह रहा हूं मैं, अगर फर्स्ट शेल है तो उसका शेल नंबर क्या है, n की वैल्यू कितनी है फर्स्ट शेल में? 1। n की वैल्यू 2 है सेकंड शेल, ठीक है। तो अगर थर्ड शेल होगा स्टूडेंट तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इन एनसीईआरटी में आपने देखा था ये थर्ड शेल है। अगर 3 शेल है, अगर n की वैल्यू 4 है तो वो फोर्थ शेल का मतलब n की वैल्यू 4 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ शेल डिपेंड्स ऑन फार्मूला 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला है 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना आएगा फिर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे। n की वैल्यू 2 होगी तो कितना आएगा बताओ? 2 का स्क्वायर 4 है तो 8 आएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा स्टूडेंट, व्हाट विल बी द आंसर? 3 का स्क्वायर 9 होता, तो 2 इंटू 9 कितना आया? 18। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितना आएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 2 इंटू 4 स्क्वायर 16, 32। इस तरह से हम n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह से ये 8, 18, 18 और 32 एंड 32 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ n वैल्यू इंक्रीज, इसे बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। इस फार्मूले का पता लग गया। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट पीरियड हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, देयर आर 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है चेक कर लो, तुम्हारे पास जो पीरियोडिक टेबल है पेज 86 पर कौन कौन से हैं? उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और दूसरा हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है। 1 और 2 ये एटॉमिक नंबर लिखता हूं मैं, 2 एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड n इक्वल टू 2 है, इसमें 8 एलिमेंट है, चेक कर लो। लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, तो लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। तो ये 3 से शुरू हुए थे, 3 एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट है, चेक कर लो। तो ये सेकंड पीरियड है और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। और ये एल शेल कौन सा है? सेकंड शेल, n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 क्या होता है? सेकंड शेल, दिख रहा? तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं। और थर्ड पीरियड हैज n इक्वल टू 3 कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। तो इसमें m शेल है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी आप चेक कर लो पेज 86 पे, कहाँ से? सोडियम से स्टार्ट हो रहा था, एटॉमिक नंबर 11 हमने लिखा था, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से। तो ये नियॉन इधर आर्गोन पे खत्म हो जाएगा। फोर्थ पीरियड हैज क्वांटम नंबर 4, इसमें 18 एलिमेंट्स है फोर्थ पीरियड में। और फिफ्थ पीरियड हैज n इक्वल टू, उसमें भी 18 एलिमेंट है। सिक्स्थ पीरियड n कंटेन 32 एलिमेंट्स। और 14 एलिमेंट के 2 सेपरेट भी बनाए गए हैं नीचे 86 पेज पे देखो, एक लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स हमने बनाए हैं जो इनके अंदर 14 एलिमेंट्स है। हायर क्लासेस में इसके बारे में यू विल लर्न मोर अबाउट।
तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल का जो सेट आता है, 7 पीरियड जो हमने दिखाए, 7 पीरियड दिखाए, और 7 पीरियड के बॉटम पे 2 और दिखाए, एक लैंथेनाइड्स दिखाया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट? 14 एलिमेंट्स। आप चेक कर लो, गिन लो, टेबल जो दी हुई है आपके बुक में। और इसके बाद में कौन सा दिखाया? एक्टिनोइड्स। इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स बनाए गए हैं स्टूडेंट। तो इनको सेपरेट रख दिया नीचे, क्योंकि फिर नहीं तो टेबल विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, ये एटॉमिक नंबर आप बुक में चेक कर सकते हो। 71 ये एटॉमिक नंबर है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 90 से दिखेंगे, 90 से ये यहाँ पे सीरियम होता है एक एलिमेंट, 58 सीरियम। और ये 90 उसने थोरियम दिखाया हुआ बुक में, आपके चेक कर लेना। तो ये भी 103 तक जाएगा। ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं इस तरह से। ये 2 सीरीज नीचे बनाई गई हैं पीरियोडिक टेबल के। क्यों है ये? हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में सारा इनके बारे में, जस्ट टू गिव यू कंप्लीट आइडिया कि ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, कौन से एलिमेंट कहां पर है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोजीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कोई भी डाउट है तो टेबल आपके सामने है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल से फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्टूडेंट? इससे हमें क्या लाभ हो रहा है कि अब आपके सामने एक टेबल आ गया जिसमें 118 एलिमेंट उसने दिखाए, ग्रुप्स हैं 18 और 7 पीरियड हैं, उसके नीचे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं। इससे क्या पता लगता है? देखो, इससे पता लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट आप बताओ मुझे, तो मुझे उसकी आई कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ये पूछा उसने क्वेश्चन कि जो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो टेबल बन गया इसका क्या बेनिफिट है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टेबल? सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, in the periodic table student, we can know the reactivity कौन सी? chemical reactivity of the elements, chemical reactivity of the element। अगर मैंने कहा कि भाई सोडियम तो पहले ग्रुप में है, तो आपने कहा ये तो फिर मेटल है भाई, एल्कली मेटल है, ये तो बहुत रिएक्टिव होगा, ये आपने हवा में रखा, इट विल कैच फायर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के साथ एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी मुझे पता लग गई कि तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। और मुझे ये पता लग गया कि अगर मुझे पता लग गया कि अगर इफ आई नो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इफ आई नो द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, भाई अगर आपको पता लग गया कि एलिमेंट कौन से ग्रुप को है, तो आई विल नो द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लग जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर। फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट वी नो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उससे हमें वैलेंसी पता लग जाती है, और उससे हमें उसकी रिएक्टिविटी पता लग जाती है कि एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में पता लग जाता है कि हाउ द एलिमेंट विल रिएक्ट। रिएक्टिविटी मतलब ये किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी देयर, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स विल बी देयर। कौन कौन से बॉन्ड्स पढ़े थे स्टूडेंट हमने? कोवलेंट होते हैं और आयनिक होते हैं। तो ये भी पता लग जाएगा कि ये कौन से बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वेदर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन या शेयर करता है। सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब वो पता लग जाता है कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। तो लेकिन एक बात थी कि मेंडलीव ने क्या किया था, जब ग्रुप बनाए थे तो उसने इन द मेंडलीव वन थिंग वाज गुड अबाउट दैट ही गिव द फार्मूला, ठीक है, मेंडलीव गिव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, मेंडलीव गिव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें फार्मूले के बारे में पता लग जाएगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स पता लग जाएंगे। इफ वी नो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट
if we know the position of element in periodic table. क्योंकि फार्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है? फार्मूला डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी. तो फार्मूला डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी स्टूडेंट. अगर वैलेंसी सेम है तो फार्मूला भी सेम होता है. ऑक्साइड का, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनेगा, उसका फार्मूला सेम होगा क्योंकि वैलेंसी सेम है. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो तुम कह रहे हो एल्यूमिनियम तो ऐसा बनाता है Al2O3. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो तुमने कहा ये MgO बनाता है जी. तो मुझे पता लग गया इसकी पोजीशन कौन सी है पीरियोडिक टेबल पे. ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 2 है, तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट विल फॉर्म. तो इस तरह से हमें उनके कंपाउंड्स का पता लग जाता है. सोडियम है तो हमने कहा Na2O बना रहा है. तो ऑक्साइड किस टाइप के बनेंगे, फार्मूले क्या होंगे, दैट इज आल्सो पॉसिबल इफ वी नो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो सिमिलर फिर यह भी पता लग गया कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में है अब उनकी वैलेंसी सेम है. सेम ग्रुप मीन सेम वैलेंसी, सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सारी बातें, ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल स्टूडेंट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो समझ में आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कमाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे तो हमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है. मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलाइड्स कौन से हैं, कौन से फार्मूले के कंपाउंड्स बनाएंगे, वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और कैसे देयर विल बी वेरिएशन इन द properties of the elements with the change in number of valence electron. All this information is available if I know the position of the element in the modern periodic table. बोलो बात सही है गलत है? यहां तक समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है टेबल? आगे चलूं? नोट कर लिया स्टूडेंट्स? अब कुछ ट्रेंड्स देखते हैं. व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? भाई टेबल तो बन गया, अब ट्रेंड्स क्या हैं? सबसे पहला जो ट्रेंड हम स्टडी करते हैं वो वैलेंसी है स्टूडेंट. तो वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज वैलेंसी? यू सेड वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी स्टूडेंट. भाई फर्स्ट ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी कैसे पता करेंगे? सेकंड ग्रुप की वैलेंसी हाउ विल वी फाइंड आउट? तो अभी हम देखते हैं कि वैलेंसी कैसे चेंज होती है, ग्रुप में क्या होती है और पीरियड में क्या होती है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो जैसे कि जब इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन हम देते हैं स्टूडेंट, तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू ऑब्टेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. भाई सोडियम है, जैसे सोडियम का ग्रुप नंबर 1 है. कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 में है. ठीक है, ग्रुप 1 में है. तो इसका आपने लिखा 281, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है किसमें? आउटर मोस्ट में. तो वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट? 1. अब ये क्या करेगा? वैलेंसी 1 है क्योंकि एलिमेंट्स रिएक्ट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल टू बिकम मोर स्टेबल. तो ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा, इफ लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? तो इसका फिर Na+ बन जाएगा. तो ये 2 8 रह जाएगा. ये स्टेबल हो गया क्योंकि ये आउटर मोस्ट में 8 हो गए, स्टेबल हो गया. ठीक है, ये स्टेबल हो गया बिकॉज नाउ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. तो ग्रुप 1 जो है उसकी वैलेंसी जो है कितनी है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अब देखते हैं कि यही हम कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ वैलेंसी. ग्रुप में वैलेंसी कैसे होती है? All elements present in a group have the same electronic configuration. They have the same valency. तो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एलिमेंट सेम ग्रुप में है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपका सीबीएसई से. सेम ग्रुप का मतलब क्या है? सेम वैलेंसी. क्या है? सेम वैलेंसी. ग्रुप सेम है तो वैलेंसी सेम है बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम. जैसे कि ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 हैव वैलेंसी इक्वल टू 1, जैसे मैंने एग्जांपल लिया. तो फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो आपने कहा सर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है. चेक कर सकते हो, ये ग्रुप 1 लिख रहा हूं मैं. दिस इज द ग्रुप 1 कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दे विल हैव द सेम. इनकी सबकी वैलेंसी कितनी है?
1, तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 8, 1, इस तरह से। और जो ग्रुप 2 में प्रेजेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से हैं? जैसे ग्रुप 2 लिखना है मैंने, तो लिखो, ग्रुप 2 में लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये एलिमेंट आप चेक कर सकते हो, आपके पास टेबल है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। यहाँ पर आपने देखा था कैसा था, 2, 8, 2 बेरिलियम का कितना आ रहा था आउटर मोस्ट में? 2, 2, 2, 8, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है 2, तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ग्रुप 2 में? 2, तो वैलेंसी कितनी है इनकी? 2, तो इनकी वैलेंसी 2 है। ये कंपाउंड लिखिए, जैसे कि मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम जब Cl के साथ रिएक्ट करता है तो ये +2 है, और ये -1 है, तो फार्मूला क्या बनता है? MgCl2। लिख गया? कैसे बनाए थे हमने फार्मूला, एक पूरे 9th क्लास में भी हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स बताया गया था। वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैलेंसी इसकी वैल्यू एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखी है। इस तरह से कंपाउंड बनते जाएंगे, CaCl2, MgCl2, BeCl2, तो ये 2 वाली वैलेंसी वाले हैं। समझ में आया? तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है? सेम, क्योंकि सेम, दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो आगे चलते हैं। अब वैलेंसी, हाउ डज वैलेंसी वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अब पीरियड में जब चलते हैं तो वैलेंसी कैसे चेंज होती है? इन ए पीरियड। पीरियड क्या होता है? अभी आपने देखा था, पीरियड का मतलब ये है कि ये लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में। तो वैलेंसी इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फॉर एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 1, 2 एंड 13। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा था कि पहला, जैसे अगर मैं ले लेता हूं स्टूडेंट, लेट मी टेक पीरियड नंबर 2 नंबर पीरियड का ले लेता हूं एलिमेंट। 2 नंबर पीरियड के एलिमेंट क्या बताए मैंने सेकंड के साथ? पहला कौन सा था? लिथियम। लिथियम के बाद कौन सा आया? बेरिलियम। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1, ग्रुप 2। और उसके बाद कौन सा आया बेरिलियम के बाद? लिथियम। ये सेकंड पीरियड की बात चल रही है, लिथियम, बेरिलियम। इधर आया था बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर बता रहा हूं, नोट कर लो। ये ग्रुप नंबर 3, 4, 14 है। ये 13, 14, 15, 16, 17। देखो ये ग्रुप नंबर दिए गए। तो इनकी वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है? वैलेंसी चेंज कैसे हो रही है? अब यहां पर इनकी वैलेंसी 1, एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 है। ग्रुप 1 की 1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 13 की 3 है। अब इसकी जब वैलेंसी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला बता रहा हूं। इनको करते हैं 14 - 10 कर देते हैं तो 4 आ जाता है। इसमें 15 - 10 करते हैं तो 5 आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर मैं इनको माइनस करूं, इसकी तो वैलेंसी आ गई, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले। ये 2, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये गेन करेंगे। ये कितना गेन कर सकता है? तो इसलिए इसको हमने अब ऐसे लिखा, इसको हटा रहा हूं मैं। तो इसमें ये 3 गेन कर सकता है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जैसे 4 शेयर कर सकता है, तो 3 गेन करेगा तो 18 बन जाएगा, क्योंकि 18 स्टेबल है। 18 क्या है? 2। 18 कौन सा स्टूडेंट? 18 आपका है 2, 8, 8। ये 8 वाले ही स्टेबल होते हैं, तो इसको 3 और मिल जाएंगे तो ये 8 में चले जाएगा। ठीक है, 18 में पहुंच जाएगा। तो ये 3, इसकी वैलेंसी फिर 3 हो गई। फिर इसकी वैलेंसी, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये गेन करेगा। ये गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 18 हो जाएगा। और ये 8 - 8 0, इसकी वैलेंसी 0 हो गई, क्यों? ऑलरेडी 8 है, इसमें स्टेबल है। तो इस तरह से वैलेंसी को क्या हुआ, पहले पीरियड में क्या हुआ? वैलेंसी इंक्रीजेस टू 4 एंड देन डिक्रीजेस।
यहाँ पे वैलेंसी इंक्रीज हुई, वैलेंसी इंक्रीजेस स्टूडेंट, ये मैक्सिमम पे पहुंची और फिर ये डिक्रीज कर दी, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर दी। ये नोबल गैसेज होती हैं, इनकी वैलेंसी जीरो है। जीरो का मतलब दे हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, तो इनकी वैलेंसी जीरो है। तो इस तरह से हम इनकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये हमने बताया। तो ये 14 to 17 needs to gain electron to complete octet. Valency, their valency is 8 minus the number of valence electron, तो इनकी valency 4 3 2 1 हो जाती है और लास्ट में इसकी 0 हो जाती है। ये भी नोट कर लो। अब यहां पर हमने एग्जांपल दिया, ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड नंबर कौन सा मैंने शो किया, सोडियम वाला, मैग्नीशियम वाला, दिस इज माय पीरियड 3। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, चेक कर लो, पीरियड 3 में है ना सोडियम, और इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। सोडियम में 1 है, ये 11 है, आपको पता ही है, 2 8 1, 12 है, 2 8 2, एल्यूमिनियम 13 है, 2 8 3, सिलिकॉन 14 है, 2 8 4, 2 8 5, ये 15 एटॉमिक नंबर है, 16 है, 17 है, 18 है स्टूडेंट, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कितने कितने हैं, 1 2 3 4। तो इनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अब पहले चार एलिमेंट्स की तो वैलेंसी इज इक्वल टू ये एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4, यहाँ पे वैलेंसी देख रहे हो, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 तक गई, उसके बाद में फिर वैलेंसी कितनी हो गई, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होने चाहिए कंबाइनिंग के लिए। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो वैलेंसी आ जाएगी, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। ठीक है, तो 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8, तो उससे हम वैलेंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो वैलेंसी कैसे वेरी करती है इन अ पीरियड, इट गोज टू 4 देन इट डिक्रीजेस, इंक्रीज हो गई, यहां पर ये मैक्सिमम 4 और उसके बाद डिक्रीज हो गई, कौन सी, वैलेंसी। तो ये एक मेथड है वैलेंसी को निकालने, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हें, एक्टिविटी वो पूछ ही रहा है बुक में, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर। तो इसका आंसर कैसे करोगे, आपको कौन सा दिया, मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दे रहा है 12, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम स्टूडेंट, 2 8 2, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी 2, ठीक है, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 है तो वैलेंसी 2। और कौन सा है, एंड सल्फर का कितना बोल रहा है, 16, तो 16 का क्या होगा, सल्फर का 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 6। अब ये 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितनी आएगी, 2, तो सल्फर की जो वैलेंसी है वो भी 2 आई है, वो 8 माइनस 6। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स की वैलेंसीज निकाल सकते हैं, जैसे इन व्हाट आई हैव शोन फ्रॉम दी हाउ द वैलेंसी वेरीज इन अ पीरियड। तो फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 का 1 वैलेंसी, 2 का 2, 3 का 3, 4 की वैलेंसी 4, आफ्टर दैट वैलेंसी 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस, इस तरह से वैलेंसीज हम निकालते हैं। तो ये हमने सारे क्वेश्चन यहाँ किए, फाइंड आउट द, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी आपने निकालनी है, तो इसको निकाल लेना।
हाउ डज वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन द ग्रुप? ग्रुप में सेम होती है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम है, ठीक है, सेम वैलेंसी इन ए ग्रुप हमने बताया, ग्रुप में सेम होती है। और पीरियड में फर्स्ट 1 से 4 और फिर 4 से 0, फर्स्ट टू 4 एंड 0। चलो ये भी आपने कर लिया। अब एक और प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है स्टूडेंट? एटॉमिक साइज रेफर्स टू रेडियस ऑफ द एटम। भाई एटम है, उसका एक रेडियस है, तो हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपको पेपर से। The atomic size can be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of the isolated atom. The atomic radius of hydrogen is 37 picometer. 1 picometer 10⁻12 मीटर होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है, और हाइड्रोजन, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को लेता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 1। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर फर्स्ट शेल में ड्रा कर दूं हाइड्रोजन का स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना है? ये के, ये मेरा के शेल है। तो ये जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन का सेंटर से, ये सेंटर और यहां से, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो ये इसका रेडियस है हाइड्रोजन का, और इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है? इज 37 पिकोमीटर है। ये 37 पिकोमीटर का मतलब 37 इंटू 10⁻12 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो एटॉमिक साइज अगर हम नीचे चलेंगे स्टूडेंट, इन ए ग्रुप, तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा? इन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउनवर्ड एज वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। क्यों ऐसा होता है कि ग्रुप में अगर जाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ग्रुप 1 ले लिया आपने, आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये कौन सा ग्रुप मैं दिखा रहा हूँ, चेक कर लो, पेज 86 के ऊपर आपका ये ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा स्टूडेंट, तो ये एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज the number of more shells are being added. There is an increase in, as you go down the group, there is an increase in number of electron shells. तो इलेक्ट्रॉन के शेल्स बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता है। तो सोडियम लिथियम से बड़ा है, पोटेशियम सोडियम से बड़ा है, रुबिडियम इज लार्जर देन पोटेशियम। तो साइजेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ शो किया। तो रुबिडियम का साइज पोटेशियम से बड़ा है, पोटेशियम का सोडियम से, सोडियम का लिथियम से। इस तरह से ये साइज, एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, जो भी मैं कह रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज स्टूडेंट, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा कि लिथियम का अंदर 2 शेल है और सोडियम के अंदर 3 शेल हैं, 1 2 3। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ जाए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। समझ में आ गई? आगे चलता हूं। जैसे यहां पर हमने शो किए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, लिथियम का था 2 1 2 8 1, इसका 19 था 2 8 8 1। इस तरह से शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, number of shells increases, number of electron shell increases, ठीक है, increases, and therefore atomic size or atomic radius increases। important point है ये, नोट कर लो, क्वेश्चन आने वाला पेपर में। तो इनका साइज बढ़ता जा रहा है। देखो ये सबसे बड़ा है इनमें, इसका 262 पिकोमीटर है, साइज बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर सीजियम जो है लार्जर इन साइज देन रुबिडियम, रुबिडियम का साइज पोटेशियम से बड़ा, पोटेशियम का सोडियम का, सोडियम का लिथियम से बड़ा साइज। तो साइज बढ़ रहे हैं, देख रहा है, साइज बढ़ रहे हैं क्योंकि शेल का नंबर बढ़ रहा है। अब पीरियड में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन ए पीरियड स्टूडेंट? पीरियड में क्या हो रहा है?
यहाँ पे देख रहे हो, इन अ पीरियड it decreases from left to right in a period as we move from left to right. Electrons are being graduated in the same shell, which is a valence shell. Thus, no new shell is formed. So, across the period, स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो. लेफ्ट टू राइट, across the period left to right, what is happening? देख रहे हो, electrons are going to the same shell. Nuclear charge is increasing. Therefore, attraction between outer electron and nucleus is increasing. The size decreases. Across the period left to right, what is happening, student? As you go from the added in the same shell, thus the non-new shell is formed and atomic size or atomic radius decreases. Radius decreases. ठीक है, या देख लो, ये लिथियम का साइज बड़ा है बेरिलियम से, बेरिलियम का बोरोन से, बोरोन का कार्बन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से देख रहे हो ये साइज डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पिकोमीटर इनका यूनिट्स है इन ए पीरियड. ये पीरियड है. तो हमने कौन सा पीरियड आपको शो किया है स्टूडेंट? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थे. सबका शेल नंबर, सबके पास शेल सेम ही है, 2 शेल है. ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, एटॉमिक नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6. तो दो शेल है सबके पास. कितने शेल हैं? सिर्फ 2 शेल है. सेकंड पीरियड है तो 2 शेल्स हैं सबके पास. कितने शेल हैं? कौन कौन से शेल हैं? के और एल. बस सेम शेल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू द सेम आउटर मोस्ट शेल. तो इनका साइज कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है. क्या होती है? अट्रैक्शन बढ़ जाती है. तो ये नोट कर लो, atomic radius decreases in moving from left to right along a period. This is due to increase in nuclear charge, which tends to pull the electron closer to and reduces the size of the atom. तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? सेम शेल में, बट there is a increase in nuclear charge. Increase in nuclear charge. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो. Increase in nuclear charge. तो across the period, the electrons are going into the same shell. Electrons, ठीक है, are added to the same shell. ठीक है, in a period, in the same period. तो इसके कारण क्या होता है? इंक्रीज अट्रैक्शन हो गई. देयर इज इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा. नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज डिक्रीजेस. अब एक एक्टिविटी आ गई यहाँ पर, एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड. ये सेकंड पीरियड के एटॉमिक रेडियाई दिए हुए हैं. अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस. डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ा साइज किसका है? लिथियम का. तो लिथियम का सबसे बड़ा है. उसके बाद कौन सा है? ये 152. उसके बाद बोरोन आया है, इसका कितना है? 152 सबसे बड़ा साइज है, पिकोमीटर में होते हैं. 88 वाला आया. 88 के बाद कौन सा आएगा? 70. बेरिलियम, अरे 111 भी है, 111 भी है. चलो इसको पहले कर लेते हैं. ये बेरिलियम X111 वाला है. तो 152 के बाद में कौन सा आया? 111 वाला. उसके बाद में कौन सा आया? बोरोन 88 वाला. बोरोन के बाद सबसे कौन सा है? 77 वाला. और फिर नाइट्रोजन आया 74 वाला. और फिर ऑक्सीजन आया कितना? 66. तो ये है पैटर्न किसका? एटॉमिक रेडियस का. तो हमने क्या देखा कि ये डिक्रीज कर रहा है अक्रॉस द पीरियड. ये कौन सा पीरियड था जो हमने देखा था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थे. तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. व्हिच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम?
आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज द पैटर्न ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? यस, ये सेकंड पीरियड में हमने अरेंज कर दिए। तो लार्जेस्ट किसका है यहाँ पर, विच एलिमेंट लार्जर देन स्मॉलेस्ट एटम्स? तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट दिख रहा है। हाउ डज एटॉमिक, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है इन ए पीरियड। चलो ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टडी द वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप 1, तो सबसे नेम द एलिमेंट विच आर द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले लिथियम का कितना है? 152 पिकोमीटर। लिथियम के बाद सोडियम आया, सोडियम का कितना है? 186। और फिर 186 के बाद कितना आया? पोटेशियम का 231। और फिर उसके बाद में आया रुबिडियम का 244 और सीजियम का कितना आया? 262। तो क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप, ग्रुप 1 का डाउन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। वाई? रीजन भी पूछेगा। ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ते जा रहे हैं। नेम द एलिमेंट विच हैज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है? यहाँ पर लिथियम। और लार्जेस्ट कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं सीजियम, इसको सीजियम कहते हैं, CS, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ये भी समझ में आ गया। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देख लो, मेटल्स और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू, मेटल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दोज विच लूज द इलेक्ट्रॉन वो मेटल होते हैं, तो वो दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जैसे सोडियम है, तो सोडियम मेटल है आप कह रहे हैं, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों? इसका 281 था, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये 28 रह गया। अब ये स्टेबल हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और जैसे मैं नीचे जाऊंगा डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज दे आर साइज इंक्रीजेस, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लूज करेंगे फास्टर, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Along the period, metallic character increases, along the metallic character decreases because electron releasing tendency decreases. तो across the period क्या होगा? Period from left to right, metallic character decreases. metallic character क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए लेफ्ट साइड मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स आ जाते हैं। राइट साइड पे क्या आते हैं? नॉन मेटल आते हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बाय एक्सेप्टिंग नॉन मेटल फॉर्म। जैसे Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसका 287 है, तो इट विल फॉर्म Cn माइनस Cl माइनस, तो ये हो गया 288, तो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन मेटेलिक हो गया, ये नॉन मेटेलिक हो गया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर। हेलोजेंस जो है, इसी तरह ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ऑक्सीजन प्लस 2e, इसका कितना था? 26, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 माइनस बन जाएगा 28, तो ये नॉन मेटल्स की तरफ आ गए। तो अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज टेंड्स टू इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज। साइज छोटा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। एक्टिविटी आ गया, एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
तो थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट लूं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन से थे आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ। थर्ड पीरियड कौन सा था, यहाँ पे सोडियम था, मैग्नीशियम था, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ठीक है। ये मेटल्स हैं सारे के सारे। इधर इधर क्या होते हैं, मेटल, और उधर जब जाने शुरू होते हैं तो वो क्या चेंज होने शुरू होते हैं। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, और उसके बाद में कौन सा आया था, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, कौन कौन से एलिमेंट लिखे थे यहाँ पे। एल्यूमिनियम आया था, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और लास्ट में कौन सा आया था, आर्गॉन। तो इस तरह के ये थर्ड पीरियड के थे, ये मेटल्स हैं। और ये इधर आप देख रहे हो कि ये भी इधर भी मेटल था, और उसके बाद में क्या हुआ था, मेटलॉइड्स शुरू हो गए थे। मतलब ये मेटल और नॉन मेटल से भी प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पे ये राइट साइड पे सब नॉन मेटल्स, ये सब नॉन मेटल्स, और ये नोबल गैस। तो लेफ्ट साइड पे मेटल, राइट साइड पे नॉन मेटल। जब हम जाते हैं तो ये हम फाइंड, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो ये मेटल्स होते हैं। Na+ बनता है, Mg2+ बनता है, Al3+ बनता है। तो इस तरह से दो टाइप के हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। जैसे ये Cl- बन जाता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं। इस तरह से वी कैन क्लासिफाई। और आपके पीरियोडिक टेबल जो दिया हुआ है बुक में, उसमें ऑलरेडी शो कर रहा है कि विच आर गेनिंग एंड विच आर लूजिंग। हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज चेंजेस इन अ ग्रुप? As you move from left to right, the tendency to lose electron becomes less, ठीक है। तो इन पीरियड, तो ग्रुप में क्या होता है, इन ए ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में जाता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ग्रुप 1 है। तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी to lose electron increases, they become more metallic। और इसको मैं ये भी कह रहा हूं, they become more electropositive। ये क्या हो गया, more electropositive, more electropositive। और इन ए पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं सेकंड पीरियड ले लिया, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं, कितनी बार लिख चुका हूं मैं, अब तुम्हें याद होने चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पर क्या हो रहा है, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो ये कम होती जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं ये वाले, ये सब नॉन मेटल में आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, दे बिकम नॉन मेटल्स। और ये नोबल गैस है, नोबल गैस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। कहां से, यहाँ पर अप टू फ्लोरीन, अप टू हेलोजन, ग्रुप 17 तक। ये हेलोजन्स वाले हैं, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं हेलोजन्स। और ये तो नोबल गैस है, नोबल गैस है, इसकी वैलेंसी 0 बताई थी। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस स्टूडेंट व्हिच टेक्स प्लेस। तो फिर यहाँ पर ये खत्म हुआ लेक्चर हमारा। इट वाज ए लॉन्ग सेशन टुडे, काफी लंबा रहा। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम, एंड रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी अवेलेबल। ओके, बाय बाय। ठीक है, समझ में आ गया सारा?